Okay, beta. So we'll start with the next chapter, fiber to fabric. All right. In class 6, we have already learned about some fibers which are obtained from plants. जैसे कि हमने पढ़ा था fibers जो है they are obtained from plants और हमने in class 6 we have already studied about cotton and jute. All right. Similarly, fibers are also obtained from animals. और जो animal fibers हैं they are wool and silk. All right. Wool जो है it is obtained from the fleece or hair of sheep. We are aware about this. We are also aware that silk is obtained from silkworm. But how these wool and silk जो fibers मिलते हैं उनको हम कैसे यान में कन्वर्ट करते हैं? How it is converted into yarn? वो यान जो हम लोग घरों में स्वेटर बनाने के लिए यूज करते हैं वो यान जिससे कि सिल्क की साड़ीज बनती है इतनी ब्यूटीफुल. तो ये we'll be dealing with the animal fiber in this chapter. We have already studied about plant fiber. We'll be studying about animal fiber in this chapter. So let us start with the first one, wool. All right. We are aware that there are different animals like sheep, goat, yak, and some other animals. Let me show you some other animals which are yielding wool to us. All right. These are the animals. We can see them that these animals have thick coat of hair. बहुत मोटा coat of hair होता है. कौन-कौन से animals? There is goat, Angora goat. There is other goat which is giving goat. Normally we fleece इसकी हम use करते हैं. Yak, which is found in high hilly areas. Then camel, then alpaca, then llama. ये सारे जो animals हैं they are found at different places on this earth at different geographical conditions and इनकी जो fleece होती है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन animals these animals have thick coat of hair. अब hair होने से क्या होता है जो hair होता है it traps lot of air अपनी body में बहुत सारी air को trap कर लेते हैं और air जो है हमें पता है it is a poor conductor. Air is a poor conductor of heat. ठीक है आप पढ़ेंगे हम will be studying in the coming chapters जो air है वो poor conductor of heat है. Poor conductor of heat का क्या मतलब है air जो है it is not allowing the heat to pass. If it is not allowing the heat to pass so ये जो hair होते हैं उसके अंदर जो air trap हो जाती है उससे जो animal की body है वो warm रहती है और इसीलिए जब हम वो fleece use करते हैं तो वो हमें भी warmth provide करती है. So wool is derived from the hairy fibers of these animals. All right. अब hairy skin जो होती है sheep. Let us study mainly about how it is wool is obtained from sheep. अब sheep हम लोगों ने बहुत सारी देखी हुई हैं. कई बार आप when you are moving on the road, sometimes you will see a herd of sheep crossing the road or near the on the side of the road or even in the fields also. Sometimes you might have seen एक पूरा herd होता है sheep का और अगर आपने ध्यान से देखा है तो उसकी जो skin होती है hairy skin होती है उसमें fibers. I don't think so any one of you would have touched but if you touch the fleece of the sheep it has two type of fibers that forms fleece. एक fiber जो है there are two types of you can say hair or fleece. एक होता है coarse beard hair. One is coarse beard hair. Beard मतलब जो उसकी दाढ़ी चिन के पास में जो hair है वो जो है that is coarse. Coarse मतलब rough. और दूसरा है fine under hair. ठीक है fine under skin जो है under hair arms होते हैं ये इसका जो texture है that is fine in nature.
फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर कह सकते हैं आप, फाइन या सॉफ्ट अंडर हेयर कह सकते हैं। ये दो तरह के फाइबर्स हमें देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ वूल, ठीक है। और ये दो तरह की फ्लीस जो होती है दैट डिफरेंशिएट्स बिटवीन different types of fleeces which are found. अब जो फाइन हेयर होते हैं जो बहुत स्मूथ होते हैं they provides fiber for making wool, ठीक है। कुछ ब्रीड्स ऐसी होती हैं, ब्रीड्स मतलब कुछ तरह की शीप ऐसी होती हैं जिनमें सिर्फ फाइन अंडर हेयर ही प्रेजेंट है। ये सॉफ्ट वाला जो अंडर हेयर है वही वाला सिर्फ फ्लीस प्रेजेंट होता है। अब ऐसे जो शीप होते हैं द पेरेंट्स, इनके पेरेंट्स जो होते हैं उनको स्पेशली सिलेक्ट किया जाता है और उनको ही रियर किया जाता है, ब्रीड किया जाता है। नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। जो अगर हम वूल ऑफ या हेयर ऑफ शीप को टच करते हैं तो वी विल सी टू टाइप्स ऑफ हेयर। एक है जो कोर्स है, कोर्स मतलब रफ बियर्ड हेयर, मतलब कि हेयर व्हिच इज नियर इट्स माउथ और चिन, और दूसरा है सॉफ्ट अंडर हेयर जिसकी बाकी की बॉडी में होता है। लेकिन कुछ शीप ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ फाइन जो अंडर हेयर होता है दैट इज ओनली दे पोजेस। और ऐसे ही पेरेंट्स को, ऐसे शीप पेरेंट्स की बात कर रही हूँ मैं, ऐसे ही शीप पेरेंट्स को सेपरेट किया जाता है, उनको चूज किया जाता है और उसके बाद में उनको सिलेक्ट कर कर उनसे वो स्पेशल कैरेक्टर ऑब्टेन करने के लिए, उनके नए ऑफस्प्रिंग्स लाने के लिए उनको ब्रीड किया जाता है और इस टर्म को हम सिलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं। सिलेक्टिव ब्रीडिंग का मतलब ये है कि उन शीप को आइडेंटिफाई करना जिनके की स्पेशली सॉफ्ट फाइन हेयर्स हैं, अंडर हेयर्स हैं, और इनको स्पेशली सेपरेट कर कर अपने पूरे हर्ड में से इन शीप को सेपरेट करना है और उसके बाद में उनको अलग से ब्रीड करना है सो दैट दे गिव अस अ डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेयर। डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर क्या है, हमें फाइन हेयर वाले फ्लीस वाले शीप चाहिए। तो जो उनके ऑफस्प्रिंग्स होंगे, जो उनके नेक्स्ट जनरेशन होंगे, जो उनके बेबीज होंगे, उनमें भी वही हेयर होंगे अगर हम सिर्फ सॉफ्ट अंडर हेयर वाले शीप लेते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को इन स्पेशली इन शीप को आइडेंटिफाई करना, उनको अलग कर कर उनको अलग से ब्रीड करना, उनको स्पेशली उनकी केयर करना so that they have a good hair in not only in them in their coming generations also, इसको कहते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग। अब एनिमल्स जो होते हैं आपने अभी ऑलरेडी पढ़ लिया कि बहुत सारे जो हिली एरियाज में है उसमें सिर्फ वूल या गोट ही जो है वो हमें वूल नहीं प्रोवाइड करती हैं, गोट एंड शीप ओनली। देयर इज अंगूरा वूल जो है जो अंगूरा गोट से आती है। देन देयर इज जो जम्मू कश्मीर में होते हैं गोट हेयर जो होते हैं, कश्मीरी गोट जो होती है उसके भी बहुत अच्छी फाइन हेयर होते हैं, उससे पश्मीना शॉल जो बहुत ही महंगा वूल होता है। तो डिफरेंट जो लामा है, अल्पाका, ये भी हमें वूल यील्ड करते हैं। अब हमें ये स्टडी करना है कि हमें इन वूल से फाइबर से वूल कैसे मिल रहा है, इन हेयर से हमें वूल कैसे मिल रहा है। अब वूल ऑब्टेन करने के लिए हमें शीप को रियर करना पड़ेगा। एक शीप से तो हमें नहीं मिलेगा इतना सारा वूल, तो हमें बहुत सारे जो शीप होती हैं उनको रियर करना पड़ता है, उनके हेयर कट किए जाते हैं और उसके बाद उसको प्रोसेस किया जाता है। लेकिन जितना ये सिंपल मैंने आपको बता दिया वैसा नहीं है, इट इज अ स्टेप वाइज प्रोसेस। स्टेप वाइज प्रोसेस जिसमें इट स्टार्ट्स विद रियरिंग। The first step is rearing and breeding of. The first step is rearing and breeding of the sheep. ठीक है, rearing and breeding of sheep ये फर्स्ट स्टेप है। सबसे पहले ये काम करना पड़ता है अगर हमें बहुत सारी वूल कमर्शियली चाहिए। तो अगर जो शीप होते हैं, हम लोग ऑलरेडी पढ़ा हुआ है इन लोअर क्लासेस कि जो शीप होते हैं दे आर हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स मतलब जो कि सिर्फ प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं, तो हर्बीवोर्स होते हैं और इसीलिए वो दे प्रेफर ईटिंग ग्रास एंड लीव्स, ठीक है। लेकिन जो ग्रेजिंग शीप होती है ना, जिनको रेयरर्स अगर आपने देखा होगा जो शीप को रेयर करते हैं, जिनके पास बहुत सारी शीप होती हैं, शेफर्ड्स जो होते हैं, वो उनको अदर देन लीव्स एंड ग्रास
they feed them on the mixture of pulses. Pulses मतलब दालें, ठीक है, they are feeding, उनको कुछ स्पेशल डाइट भी वो देते हैं, उनको पल्सेस देते हैं, कॉर्न देते हैं, ज्वार देते हैं, ठीक है, ऑयल केक्स देते हैं, ये इनको लीव्स और ग्रास के अलावा दिया जाता है, क्योंकि ऑयल केक्स वो होते हैं जो ऑयल रिमूव करने के बाद सीड्स में से ऑयल रिमूव कर लेते हैं और उसके बाद जो बचता है उसको ऑयल केक्स कहते हैं, तो ये सब उनको प्रोवाइड किया जाता है। और विंटर में जो शीप होती हैं उनको अंदर ही रखा जाता है, दे आर फेड ऑन लीव्स एंड ग्रेन एंड ड्राई फॉडर। अब बहुत सारे पार्ट्स में हमारे जो है इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में शीप को ब्रीड किया जाता है फॉर गेटिंग वूल, ठीक है, और पूरी कंट्री में अलग अलग तरह के शीप्स हमें मिलते हैं। लेट मी शो यू डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ शीप, different breeds of sheep we can see. You can see here, देखिए ये यहाँ पर है एक शीप है, the one which is called मारवाड़ी, ये इनके नेम है, ब्रीड का नाम है, ठीक है, ये कोर्स वूल देता है हमें और ये गुजरात में मेनली मिलता है। देन पठानवाड़ी जो है दैट इज फॉर होजरी हम यूज करते हैं, ये भी गुजरात में मिलता है। देन बखरवाल जो है दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जम्मू, ये जम्मू एंड कश्मीर में मिलता है हमें, और इससे हम लोग जो क्वालिटी ऑफ वूल जो होती है बहुत ही सुपीरियर होती है और इससे वूलन शॉल्स बनाते हैं। देन वी हैव नल्ली, ये नल्ली जो ब्रीड है दैट इज फाउंड इन राजस्थान, हरियाणा और हमारे पंजाब में भी, ऐसी वाली शीप हमारे पंजाब में देखने को मिलती है और इससे जो है बेसिकली कारपेट वूल बनता है। और उसके बाद में रामपुर बुशैर जो है इसकी फ्लीस जो है ब्राउन कलर की होती है, एसेंशियली ब्राउन कलर की फ्लीस होती है, ये उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब में भी ये देखने को मिलता है। एंड देन वी हैव लोही, इसकी जो वूल है वो बहुत गुड क्वालिटी की होती है और ये राजस्थान और पंजाब में हमें मिलता है। तो आप देखिए ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ शीप है विच वी कैन सी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। और कुछ शीप जो ऐसी होती है उनका थिक कोट ऑफ हेयर होता है ऑन देयर बॉडी और बहुत ही गुड क्वालिटी और बहुत लार्ज क्वांटिटी में ये हमें वूल प्रोवाइड करते हैं। तो शीप जो है आर सिलेक्टिवली ब्रेड विद वन पेरेंट बीइंग अ शीप ऑफ गुड ब्रीड, मतलब मेल और फीमेल में से एक जो पेरेंट होता है वो बहुत ही गुड क्वालिटी वूल प्रोवाइड करने वाला होता है, गुड ब्रीड का होता है। तो इससे जो कमिंग जनरेशन आएंगे, उनकी जो बेबीज आएंगे, उनमें भी अच्छी क्वालिटी का वूल होगा। और इसको हम कहते हैं रेयरिंग एंड सिलेक्टिव ब्रीडिंग। रेयरिंग इज उनको पालना, गिविंग देम गुड फूड, गिविंग देम नाइस एनवायरनमेंट टू लिव इन, उनको ठंड से और गर्मी से बचाना, तो ये रेयरिंग में आ जाता है। और ब्रीडिंग में सिलेक्टिवली जो हमने पेरेंट्स को सिलेक्ट किया है, जो अच्छे ब्रीड के पेरेंट्स हैं उनको सिलेक्ट कर उनको आगे अच्छी तरह से ब्रीड करना, उसको हम ब्रीडिंग कहते हैं। अब एक बार आपने रेयर कर दिया शीप के, तो उसमें एक बहुत थिक ग्रोथ ऑफ हेयर आ जाती है, ठीक है। अब ये जो ग्रोथ ऑफ हेयर है, अब नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है दैट वी नीड टू प्रोसेस दीज फाइबर्स इनटू वूल। अब हमें वूल तो मिल गया, वूल जो हम निटिंग के लिए यूज कर रहे हैं वो एज सच नहीं हम यूज कर सकते। अब फ्लीस ऑफ शीप जो है उसको अलोंग विद थिन लेयर ऑफ स्किन हम लोग उनको रिमूव करना पड़ता है। सो व्हाट हैपेंस इज नेक्स्ट, द सेकंड स्टेप इज आफ्टर लेयरिंग एंड ब्रीडिंग वी हैव टू shearing, do shearing। शेयरिंग का मतलब है कि आपने जब शीप की बॉडी के ऊपर बहुत थिक फ्लीस आ गया है तो उसको रिमूव करना है। फ्लीस मतलब हेयर, ठीक है, उसको रिमूव करना है। उसको कैसे रिमूव करते हैं, उसको शेव ऑफ कर देते हैं उसकी बॉडी के ऊपर से। जैसे कि यू माइट हैव सीन बार्बर्स जो है शेव कर देते हैं बियर्ड के हेयर जो मेन में आते हैं, उसको वो शेव ऑफ कर देते हैं या फिर हेयर रिमूव कर देते हैं बार्बर्स। कटिंग जो करते हैं, अगर एक बार कटिंग करते हैं और शेव करते हैं तो उसके बाद फिर से आ जाते हैं। तो ये जब बहुत थिक ग्रोथ हो जाती है हेयर की ऑन द बॉडी ऑफ द शीप, तो उसको वो शेयर ऑफ कर देते हैं और शेयर ऑफ करने के बाद में एक थिन लेयर ऑफ स्किन भी निकाल देते हैं और उस प्रोसेस को हम कहते हैं शेयरिंग। अब कहेंगे आप कि क्या उसको दर्द नहीं होता है? तो जब हम अपने हेयर रिमूव करते हैं या कट कर देते हैं बिल्कुल पास से स्किन के, या फिर जो मेन बियर्ड अपनी शेव ऑफ करते हैं तो उनको दर्द नहीं होता है, बिकॉज जो आउटरमोस्ट स्किन होती है दैट इज डेड स्किन। तो इसीलिए शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शेप
and when you, because the skin, the outer layer of the upper layer of the skin is dead. अब sheep जो है उसके hair फिर से grow करने लग जाएंगे, लेकिन ये जो rearing shearing का process है that is done mainly during the summer. समर सीजन में इसलिए किया जाता है क्योंकि समर सीजन में टेम्परेचर इज नॉट वेरी लो, और आपको मैंने बिगनिंग में ही बताया था कि जो वूल होती है वो वार्मथ प्रोवाइड करती है शीप को, और गर्मियों में वो फ्लीज ज्यादा हो जाएगी, इट विल नॉट बी एबल टू बेयर दैट हीट क्योंकि वो ट्रैप कर रहा है एयर को. तो अगर हम विंटर में ग्रो करते हैं हेयर को और समर में शेयर कर देते हैं तो इट विल बी एबल, इट विल हेल्प ऑल्सो एंड इट विल हेल्प अस ऑल्सो बिकॉज वी कैन प्रोसेस द वूल by the time winters come in. So the second step, third step after shearing is scoring. अब जो हमने wool remove किया है, जो हमने wool remove कर दिया है, उस wool को अच्छी तरह धोना है क्योंकि इसमें बहुत dirt होती है, dust होती है, germs होते हैं, grease होती है, तो ये सारी चीजों को जो है रिमूव करना है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्कोरिंग. इट इज कॉल्ड एज स्कोरिंग, SCOURING. तो ये नाउडेज स्कोरिंग जो है इट इज डन बाय मशीन्स, अर्लियर इट वाज डन मैनुअली. ठीक है, अब नेक्स्ट है आफ्टर स्कोरिंग, जो हमने पेंट किया है उसको हमने वॉश कर दिया, देन इट इज कॉल्ड एज द नेक्स्ट स्टेप इज सॉर्टिंग. अब मैंने आपको बताया कि वूल है बहुत तरह का होता है, तो वूल जो हमें मिला है अलग अलग तरह का, उसको अब अपने सेपरेट करना है. जो हेयरी स्किन होती है दैट इज सेंट टू द फैक्ट्री, जहाँ हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर, जो अलग अलग टेक्सचर के जो हेयर होते हैं उनको सॉर्ट कर दिया जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है. उस प्रोसेस को हम कहते हैं सॉर्टिंग. कई बार आपने नोट किया होगा कि आपके जो स्वेटर्स होते हैं उसके ऊपर बुर आ जाता है. ठीक है, तो वो जो बुर आ जाता है वो फ्लफी से जो राउंडेड स्ट्रक्चर से आते हैं बुर, देखा है ना आप लोगों ने? रेज योर डिजिटल थंब अप. आपके वूलन्स के ऊपर बुर आ जाते हैं छोटे छोटे से, गोल गोल से, है ना? तो वो जो बुर होते हैं वो इस वूल में भी आते हैं. वेरी गुड, मेरे को पता लग गया, बहुत बच्चों ने देखे होंगे. अब वो बुर जो होते हैं उसके ऊपर भी आ जाते हैं, तो उनको रिमूव किया जाता है, ठीक है, फ्रॉम द हेयर. एंड ये जो उसके बाद में फिर से एक बार और स्कोरिंग किया जाता है. स्कोरिंग मतलब उसको अच्छी तरह वॉश किया जाता है और ड्राई किया जाता है. अब वूल जो है रेडी है टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर्स. अब वूल रेडी है. अब उससे पहले शीप का अगर आपने नॉर्मली कलर देखा होगा तो शीप ब्राउन, ब्लैक या व्हाइट कलर के होते हैं. उनकी हेयर जो है ब्राउन, ब्लैक या व्हाइट होते हैं. लेकिन हमारे स्वेटर्स तो कितने डिफरेंट कलर्स में आते हैं, है कि नहीं? कारपेट्स में कितने डिफरेंट कलर्स हैं. तो नेक्स्ट जो स्टेप होता है दैट इज डाइंग. DYEING. डाइंग का मतलब फ्लीस को डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देना. जो डिफरेंट कलर्स प्रोवाइड करना है नेचुरल फ्लीस ऑफ शीप को, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइंग. क्योंकि नेचुरल कलर फ्लीस का क्या है? सिर्फ ब्राउन, ब्लैक एंड व्हाइट. लेकिन हमें अलग अलग वैरायटी के कलर्स चाहिए तो हम उनको इस स्टेप के ऊपर डाइंग कर देते हैं, उनकी डाइंग कर देते हैं. और उसके बाद में अब वूल रेडी है. नाउ द वूल इज रेडी. उसको स्ट्रेटन किया जाता है. स्ट्रेटनिंग मतलब उसको बिल्कुल लॉन्ग स्ट्रैंड्स में किया जाता है, उसको कोम किया जाता है, उसको नाइसली प्लेन किया जाता है. उसके बाद उसको यार्न में रोल कर दिया जाता है. वही यार्न जो आप मार्केट से खरीदते हैं फॉर निटिंग स्वेटर, देखते हैं आप, बॉल्स ऐसे बनी होती हैं, तो उसको अब रोल कर दिया जाता है इनटू यार्न. अब ये लॉन्गर फाइबर्स, जो लंबे लंबे फाइबर्स होते हैं, सभी लोगों ने देखा हुआ है घर में आपकी ग्रैंड मॉम या मैम मॉम स्वेटर्स बनाते हैं तो आपने देखा है वो बॉल में कितना लंबा थ्रेड होता है. वो एक पूरी बॉल का एक सिंगल थ्रेड होता है. नोट किया है कितने लंबे लंबे थ्रेड होते हैं? तो ये जो लंबे वाले थ्रेड्स होते हैं ना, लंबे वाले यार्न्स जो होते हैं, वो स्वेटर्स बनाने के लिए यूज किया जाता है. और जो शॉर्टर फाइबर्स होते हैं ना, लॉन्गर फाइबर्स आर यूज फॉर मेकिंग स्वेटर्स, और जो शॉर्टर फाइबर्स होते हैं उनको स्पन कर देते हैं और वीव कर देते हैं टू गेट a woolen cloth or maybe carpets or any other thing of that sort. ठीक है, तो let me show you these pictures how they do this processing of wool. ये देखिए प्रोसेसिंग ऑफ वूल. तो पहले स्टेप हमने पढ़ा शेयरिंग, उसके बाद स्कोरिंग मतलब शेयरिंग मतलब रिमूविंग द हेयर
फ्लीस ऑफ द शीप अलॉन्ग विद अ थिन लेयर ऑफ स्किन फ्रॉम द बॉडी ऑफ द शीप, उसको कहते हैं हम शेयरिंग। उसके बाद वो जो हमें मिला उसको हम कहते हैं स्कोरिंग। स्कोरिंग मतलब वॉशिंग, ठीक है, द फ्लीस, द शेयर्ड स्किन। उसके बाद हम करते हैं सॉर्टिंग, उसके बाद करते हैं हम रिमूविंग बुर, फिर डाइंग, ये डाइंग की स्पेलिंग गलत है, DYEING होता है डाइंग, देन मेकिंग यार्न। अब एक और हम ये देख सकते हैं प्रोसेस इन द फॉर्म ऑफ the pictures which are given to us. We can see these. Let me show you these pictures first. ये देखिए यहाँ पर शेयरिंग हो रही है, शीप को यहाँ पर शेयरिंग कर रहे हैं, उसकी फ्लीस रिमूव कर रहे हैं, और उसके बाद में हम स्कोरिंग कर रहे हैं। ये मैनुअल स्कोरिंग है, मतलब वॉशिंग द फ्लीस, ये जो फ्लीस हमें मिली है, हेयर जो मिले हैं, उसको हम वॉशिंग मैनुअली कर रहे हैं, और यहाँ पर मशीन्स में हो रही है स्कोरिंग, ठीक है। और उसके बाद में सॉर्टिंग करके बुर्स को रिमूव कर उसके बाद उसको रोल कर रहे हैं इनटू यार्न, यार्न में रोल कर रहे हैं, जिससे बाद में पूरे के पूरे प्रोसेस में जो होता है इट इज rolled into yarns, and longer fibers जो होते हैं they are used for making sweaters, and the shorter ones are used, are spun to make woolen clothes or maybe carpets. If this is a very long process and it is happening in industries and factories, so that must be involving certain people. आपने देखा कि बहुत सारे human beings इसमें involved होते हैं। woolen industry बहुत ही important means of livelihood है for many people. हमें स्वेटर मिलते हैं पहनने के लिए, वुलन्स मिलते हैं पहनने के लिए, बिकॉज इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक जो स्टेप था दैट इज सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में मैंने आपको बताया था कि क्या होता है कि सॉर्टिंग में जो वूल फाइबर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स हैं उनको अलग अलग किया जाता है, दैट इज डन मैनुअली। सॉर्टिंग जो है मैनुअली करना पड़ता है। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि जो उनके हेयर होते हैं, ये शीप के हेयर जो होते हैं उसमें बहुत सारी डस्ट, जर्म्स, ग्रीस बहुत सारी होती है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं। तो जो दोज पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड इन द सॉर्टिंग प्रोसेस, फैक्ट्री में अलग अलग प्लेस में शेयरिंग कोई और करता है, स्कोरिंग कोई और पीपल करते हैं, सॉर्टिंग कोई और करते हैं, डाइंग कोई और करते हैं। तो जो सॉर्टिंग में लगे हुए हैं लोग, जो सेपरेट करते हैं या फिर स्कोरिंग कर रहे हैं, इफ इट इज डन बाय मशीन देन इट इज नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन सॉर्टिंग के लिए अलग अलग जो है मैनुअली ही करना पड़ता है। तो ये लोग जो इन्वॉल्व होते हैं सॉर्टिंग प्रोसेस में उनको सॉर्टर्स कहते हैं। और ये जो सॉर्टर का जॉब होता है ये बहुत ही डिफिकल्ट जॉब है और रिस्की भी है, क्योंकि कई बार they get infected by a bacteria which is named as anthrax, bacteria named anthrax। क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है which is found in the fleece of the sheep, और ये बैक्टीरिया एंथ्रैक्स एक बहुत ही डेडली ब्लड डिजीज कॉज करता है। इट कॉजेज अ वेरी डेडली फेटल ब्लड डिजीज, फेटल क्योंकि इससे लोग मर भी सकते हैं। तो इट कॉजेज अ ब्लड डिजीज एंड देयरफॉर, लेकिन सॉर्टिंग का काम जो है वो ह्यूमन बींग्स को ही करना पड़ेगा जो इस जॉब को टेकअप करते हैं, और क्योंकि वो रिस्क इन्वॉल्व है उनके ऑक्यूपेशन में। उनका ऑक्यूपेशन क्या है? उनका ऑक्यूपेशन इज दैट ऑफ सॉर्टिंग। तो क्योंकि उनके जॉब में नाइदर दे कैन लीव द जॉब इफ दे विल नॉट डू, समवन एल्स विल डू इट। ना तो वो जॉब छोड़ पाते हैं, लेकिन उनकी जॉब में रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो ऐसे ऑक्यूपेशंस जिनमें की रिस्क इन्वॉल्व होता है बिकॉज ऑफ देयर जॉब, दे व्हाट दे आर डूइंग, आर कॉल्ड एज ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स। और ये सभी मोस्ट ऑफ द जॉब्स में ये होते हैं, लेकिन हर जॉब के साथ अलग अलग तरह के ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो इट इज अ डिफिकल्ट वन, बट स्टिल someone has to do it, so they have to take care of not contacting with this bacteria and getting that fatal disease, but the risk is always there. So this is all with the wool, ठीक है, how the wool is being processed to obtain the yarn, what we use it for making different articles including sweaters and shawls.